Hello everyone, welcome to my channel Study Well e-learning, and today we are going to discuss about male reproductive system. So in human beings, you know that male reproductive system primary sex organs are testes. So primary sex organs जिनका काम है gametes बनाना, that is a pair of testes. Okay, so इनका काम क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स they produce gametes. Main function is to produce gametes, is to produce sperms, and along with producing gametes they also secrete male sex hormones. Okay, sex hormones. So as these are male sex organs, so they will produce male sex hormones. You know, the main male sex hormone is called testosterone, and it is a group of male sex hormones जिसको हम एंड्रोजेंस बुलाते हैं, और इसका जो मेन हार्मोन है that is known as testosterone. ओके, ये काम होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का. देन along with primary sex organs other associate organs are also there. तो उसमें क्या आएगा? उन सभी को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, which help primary sex organ in accomplishing its functions. Okay, gametes बन जाएंगे, gametes को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे. ओके, तो वो सभी या जो और हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे जिससे इनकी ग्रोथ हो, तो दैट वी विल बी सीइंग हियर. तो यहाँ पर दिस इज द डायग्राम ऑफ male reproductive system. So we will see ki what else is there in addition to testes. So there are accessory ducts. जो ducts हैं जो कि help करते हैं in passage of sperms from testes to wherever they have to go. Okay, means to female genital tract. Okay, so from testes the sperms will travel, and they will travel through the ducts, and these ducts are known as accessory sex ducts or simply accessory ducts. Okay, then there are male sex glands, okay, which secrete hormones, और साथ में है external genitalia, and this is the, in case of males it is penis, and this is the copulatory organ, and this copulatory organ is responsible for transferring sperms into female genital tract. Okay, so transfer of gametes, you know, first I told you in my last video that first of all gamete formation occurs, means formation of gamete, gametogenesis. तो gametes बनाना जो काम है वो primary sex organs का काम है, ठीक है, which are a pair of testes. And उसके बाद क्या होगा? gametes को ट्रांसफर करना है into female genital tract. That transfer is done by external genitalia, or this is the penis, or also known as copulatory organ. Okay, and ये रहेगा साथ में, ठीक है. एक्सेसरी ये सारे ऑर्गन्स है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, दे हेल्प प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टू इन रिप्रोडक्शन. ओके, तो लेट्स सी कि एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी हैं, ग्लैंड्स कौन सी हैं, एंड लेट्स स्टडी अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया. Okay, so here what is this diagram shows, you can see here male reproductive system. You can see here, you can see the primary sex organs or testes. Single testis is seen as this is the side view of male reproductive system, and this is the front view. Okay, तो pair of testes है इसमें, ठीक है. इसके साथ जो ducts हैं, accessory ducts, जिससे ये इसका पैसेज होता है सीमेन का. टेस्टिस में यू नो गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, एंड देन दे पास थ्रू दीज डक्ट्स
ठीक है, यहाँ पर कुछ डक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, कुछ और भी डक्ट्स हैं बीच में छोटी। तो ये डक्ट आपको नजर आ रही है बड़ी वाली, ठीक है। तो these are ducts, accessory ducts, and then you can see ducts सभी के नाम बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि नहीं तो अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वीडियो। तो पहले हम सिंपली टेस्टिस देखते हैं। टेस्टिस के साथ में यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे, then they will pass through this structure called epididymis। ये भी बहुत ही अच्छे से हाईली कॉइल्ड एक डक्ट है, बहुत बुरी तरह से कॉइल्ड डक्ट है epididymis, ठीक है। and what happens, they pass through this tube called vas deferens, ठीक है। अब इस पिक्चर में you can see the copulatory organ penis, ओके, यू कैन सी द यूरिनरी ब्लैडर कि कैसे टेस्टिस से निकलकर वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होकर आ रहा है, ठीक है। देन इन दिस पिक्चर यू कैन सी मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, दीज आर एडिशनल ग्लैंड्स इन एडिशन टू टेस्टिस। ये प्रोड्यूस करती है सेमिनल प्लाज्मा। तो सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल्स, ये एक पेयर में है। दिस पिक्चर यू कैन सी पेयर में है ये सेमिनल वेसिकल्स। देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी पेयर में ही हैं, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ सिंगल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स दो हैं, बल्बोयूरेथ्रल भी दो हैं, इन्हें कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। दीज आर स्मॉल ग्लैंड्स, ओके, हियर यू कैन सी स्मॉल ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड। इस पिक्चर में भी देख लो, छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं। देन ये भी दो हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक सिंगल ग्लैंड है, सिंगल ट्रायंगुलर ग्लैंड, ओके। ये तीनों ही ग्लैंड्स मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। ये रिलीज करती हैं सेमिनल प्लाज्मा विच हेल्प्स टू नरिश द स्पर्म्स, उनके एक्टिवेशन में हेल्प करती हैं और उनके पैसेज में हेल्प करती हैं इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, लुब्रिकेशन में भी हेल्प करती हैं। अब जो स्पर्म्स हैं उनका वो स्टार्ट होते हैं टेस्टिस से और उनका पैसेज थ्रू कॉपुलेटरी ऑर्गन, ओके, यूरिथ्रा से हो जाता है सीमेन का। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका काम है सेक्स हार्मोन सिक्रीट करना, एंड्रोजन्स, ओके। एंड दीज थ्री एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये तीनों ही जो हैं ये सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करती है। ये एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं। वी विल बी डिस्कसिंग देम इन डिटेल्स। यहाँ पर हम सिर्फ इस डायग्राम को देख रहे हैं सबसे पहले, और थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं। देयर आर एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है, वो यहाँ पर हो गए सेमिनल वेसिकल्स पेयर में, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में, और इनके बीच में आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। सो यहाँ पर और क्या देखना है हमें, वी नो दैट इनसाइड दिस कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस, इसके अंदर यूरिथ्रा है, मेल यूरिथ्रा, एंड यू कैन सी इट इज कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर बना है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पार्ट है, ल्यूमेन है, और ये इसका बाहर का कवरिंग है। तो इन यूरिनरी ब्लैडर यू नो इट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम यूरेटर्स, ठीक है, यूरेटर से इसमें यूरिन आएगा, कलेक्ट होगा, कनेक्टेड होगा ये यूरेटर से, ठीक है, यहां से कनेक्ट होगा क्योंकि एक ही यूरेटर, ये साइड व्यू है, एंड इसमें यूरिन बनेगा, यूरिन स्टोर होगा, एंड यूरिन विल पास थ्रू द यूरिथ्रा। तो यहां से ये जो पैसेज दिख रहा है, दिस पैसेज इज ऑफ यूरिन, यहां से यूरिन पास होगा, ठीक है, एंड इट विल पास थ्रू द पेनिस। तो पेनिस के अंदर यूरिथ्रा है, और यू कैन सी कि जो सीमन है, सीमन इज, इन जो तीनों ग्लैंड्स हैं, इन तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। दिस सेमिनल प्लाज्मा इनमें क्या क्या, ये प्लस स्पर्म, इसमें तो इन तीनों का सिक्रीशन है, प्लस स्पर्म जो टेस्टिस में बने, दोनों मिलकर क्या बोलते हैं हम इसको, वी कॉल इट सीमेन। सो सीमेन ऑल्सो passes through the copulatory organ called this
पेनिस, लेकिन वो एक टाइम पे पास नहीं होता, अलग अलग टाइम पे पास होता है, ठीक है। सो हियर क्योंकि वो उनको पास होना सेम पैसेज है, तो जो यूरिथ्रा है इन मेल्स इट इज क्वाइट लॉन्ग और उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा। जब वो यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर पास होती है थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, तब हम उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। आगे चलती है वो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, देन ये मेम्ब्रेनस रहेगी। जब ये एंटर हो जाएगी पेनिस के अंदर, देन वी विल कॉल इट पेनाइल यूरिथ्रा। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है यूरिथ्रा। ओके, देन इट ओपन्स हियर विद दिस यूरिथ्रल ओपनिंग है, ये इसको बोलेंगे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से यूरिथ्रा चल रही है, यूरिथ्रा है, बट अब देखते हैं पैसेज ऑफ स्पर्म्स और सीमेन, स्पर्म्स एक्चुअली। तो टेस्टिस से जब स्पर्म्स बनते हैं तो वो कैसे पास होते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है। नाम एक बार लिख देती हूँ, बट वी विल डिस्कस देम देयर डायग्राम्स लेटर ऑन। एक्सेसरी डक्ट्स जो हैं यहाँ पर वो हैं, सबसे पहले जो स्पर्म्स बनते हैं वो बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके, जस्ट टेलिंग यू, विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। फिर एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं जिनको हम रेड टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है, वॉसा इफ्रेंशिया बोलते हैं। ओके, देन कम्स एपिडिडमस और फिर आती है वॉस डिफरेंस। ये वॉस डिफरेंस जो है ये वर्ड सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल में बोलेंगे हम, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट ये जो है ना, ये दिस इज वॉस डिफरेंस, दिस ट्यूब, और जब हम इन दोनों को बोलेंगे वॉस डिफरेंस इज सिंगुलर, जब दोनों को रेफर करेंगे, दोनों को लेबल कर देंगे, तब इसको बोलेंगे हम वॉसा डिफरेंशिया, ठीक है। तो ये बन जाता है प्लूरल, ठीक है। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना कि यहाँ से जो एक्सेसरी डक्ट्स आएंगी, तो यहाँ से स्पर्म बनने के बाद रेड टेस्टिस से होकर देन वॉसाइफ्रेंशिया से होकर, वॉसाइफ्रेंशिया भी प्लूरल है, ठीक है। अगर हम सिंगुलर बोलेंगे तो वॉस इफ्रेंस बोलेंगे। वेल, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द डायग्राम राइट नाउ, हम सारा कुछ बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, तब आपको सब क्लियर होगा। सो हियर पासिंग थ्रू दिस, तो वॉस डिफरेंस में आ जाएगा। वॉस डिफरेंस यू कैन सी इट गोज लाइक दिस अबव द यूरिनरी ब्लैडर, उसको पास करने के बाद यहाँ आकर ये सेमिनल वेसिकल से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल एज यू नो इज अ मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड। इसका जो सिक्रीशन है वो यहाँ पर उसमें आ रहा है स्पर्म्स में, ठीक है, ऐड हो रहा है। तो ये जो पार्ट है, दिस स्मॉल पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। दिस पार्ट इज इजैकुलेटरी डक्ट। I think I have labeled it in this diagram. यहाँ पर लेबल किया है, नहीं किया, हाँ किया है थोड़ा सा, ये रहा लेबलिंग, क्योंकि सेमिनल वेसिकल इनसे ये पार्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट हो रही है, दोनों तरफ से आ रही है। उसके बाद जब यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर से आती हुई यूरिथ्रा से मिल जाती है, ये यूरिथ्रा आ रही है ऊपर से, तब इसका नाम यूरिथ्रा ही हो जाता है। उससे पहले प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, फिर यहाँ पर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, एंड देन पेनिस में एंटर होते ही दिस इज पेनाइल यूरिथ्रा हो गया, ठीक है। सो पहले, उससे पहले क्या था, यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट से पहले वॉस डिफरेंस ही रहेगा ये सारा, और वॉस डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से मिलने के बाद, जब उसकी ओपनिंग होने के बाद उसकी डक्ट की, यहाँ पर इट बिकम्स इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन इट बिकम्स यूरिथ्रा। अब यहाँ पर ये तीनों मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस डालेंगे बीच में, तो यहाँ पे सबसे पहले सेमिनल वेसिकल से आएगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से आएगा, और फिर बल्बोयूरिथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड से आएगा उसका सिक्रीशन, तीनों का सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा। सो नाउ स्पर्म्स आर इन
seminal plasma, and we call them semen now. So it is semen that passes through the penis, okay, that enters the female genital tract. Okay, अच्छा, now we have इस डायग्राम में we can see कि जो पार्ट है यहाँ पर कॉर्पस कैवर्नोसम, ये पार्ट है, ये जो है एक्चुअली ये टिश्यू, ये इरेक्टाइल टिश्यू है, कॉर्पस स्पोंजियोसम भी इरेक्शन में हेल्प करता है, बिकॉज फॉर इंटर कोर्स इरेक्शन ऑफ पेनिस इज मस्ट। ओके, तो ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है ये डॉर्सल साइड पर होता है पेनिस के, दिस इज एट द डॉर्सल साइड ऑफ पेनिस, एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम इज ऑन वेंट्रल साइड। और ये कॉर्पस स्पोंजियोसम एक ट्यूब की तरह है in which urethra is present. ये like it covers the urethra. Okay, it's like a tube. It's a single tissue. Okay, corpus spongiosum is a single tissue, जबकि corpus cavernosum ये डबल है, ये दोनों साइड्स पे होता है, डोर्सल साइड पे, दो साइड्स पे रहेगा यूरिथ्रा के। ओके, जैसे कि यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये वाला दोनों साइड्स पर है, ये टू है, एंड दिस स्पोंजियोसम इज सिंगल बट इट सराउंड्स, इट्स लाइक अ ट्यूब, तो ये यूरिथ्रा को सराउंड करता है। ठीक है, कॉर्पस जो स्पोंजियोसम है या कॉर्पोरा स्पोंजियोसम भी बोलते हैं इसको, सो दिस इज spongiosum spongy, it becomes erect. ओके, और ये जो है कैवर्नोसम, इसके अंदर आएगा, ब्लड फिल होगा, ओके, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। ओके, तो ये जो दोनों टिश्यूज हैं इनको हम इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। These are found in penis. One more thing I want to tell you, this is gubernaculum. gubernaculum जो है ये लिगामेंट की कोड है जो टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ, which I haven't told you about scrotum, तो पहले स्क्रोटम की बात करते हैं। स्क्रोटम क्या है? ये एक बैग है जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं, दिस इज द बैग। यू नो, जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन में नहीं होते, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ये इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। The testes are extra abdominal. Okay, abdomen में नहीं होंगे, extra abdominal है ये। और ये जो extra abdominal nature है, ये क्या है कि testes जब embryonic stage में develop होती हैं, then they descend, ठीक है, इनका descend होता है, तो descend into scrotum। कब होती हैं? 7th month में of pregnancy। ओके, 7th month ऑफ प्रेगनेंसी में ये डिसेंड हो जाती हैं इनटू स्क्रोटम, दे बिकम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन से बाहर आ जाती हैं, और जब ये एब्डोमेन से बाहर आ जाती हैं तो ये एब्डोमेन से कनेक्टेड रहेंगी, सो दे रिमेन कनेक्टेड टू एब्डोमेन, ओके, थ्रू अ कैनाल, ये कैनाल है, इस कैनाल के थ्रू आएगा क्या, जो भी यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिक कोड है, इस कोड से क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें होती है आर्टरी, वेन और नर्व, ठीक है, जो कनेक्ट करेगी एब्डोमेन से टेस्टिस को, तो ये होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल डिसेंट ऑफ टेस्टिस। अब स्क्रोटम में रहने का क्या रोल है, यू मस्ट बी नोइंग कि जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में क्यों होती हैं, वो एब्डोमेन में क्यों नहीं होती, क्योंकि एब्डोमेन का जो टेम्परेचर है वो हाई है, और एब्डोमिनल टेम्परेचर से, आपको मालूम ही है एब्डोमिनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और जो स्क्रोटम है वो बॉडी से थोड़ा सा दूर होने से इसका जो टेम्परेचर रहता है दैट इज 2 to 2.5 डिग्री लोअर, ठीक है, सो 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये जरूरी है। स्पर्मेटोजेनेसिस इससे ऊपर के टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। ठीक है, दिस टेम्परेचर, दिस इज scrotum, temperature of scrotum is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than that of abdomen. ओके, और ये जरूरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्क्रोटम में टेस्टिस है। नाउ लास्ट थिंग is there is a ligament which keeps, which connects this testis to the scrotum. इसे बोलते हैं गुबर्नाकुलम। ये जो गुबर्नाकुलम है ये लिगामेंट का कोड है और ये टेस्टिस के डिसेंट में, जो डिसेंड हो करती हैं टेस्टिस, उसमें हेल्प करता है। यानी कि टेस्टिस को स्क्रोटम में लाने में इसका रोल है, गुबर्नाकुलम का। ठीक है, गुबर्नाकुलम लिगामेंट है, ये क्या करता है, पहले ग्रो करता है एंड देन इट श्रिंक्स। जो श्रिंक होने से क्या होगा, इट ग्रोज फर्स्ट एंड देन श्रिंक। श्रिंक करने से ये टेस्टिस को नीचे खींच कर ले आता है। ठीक है, तो ये गुबर्नाकुलम एक टिश्यू है, लिगामेंट है, और ये लिगामेंट इट कीप्स द टेस्टिस इन स्क्रोटम। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देख लिया हमने, इस डायग्राम को भी देख लिया। ये फ्रंट व्यू है, इसमें आपको पेयर ऑफ टेस्टिस नजर आ रहा है। सिंगल को हम TES लिखते हैं। ठीक है, जब दोनों को लेबल करेंगे TES, दैट इज प्लूरल ऑफ टेस्टिस। एंड यू कैन सी हियर टेस्टिस दिख रही हैं। एपिडिडमस बाद में इसके बारे में और बात करेंगे। वॉस डिफरेंस दोनों साइड से आ रही हैं। ठीक है, एंड देन सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये तीनों हैं मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स। मेल सेक्स ग्लैंड्स आर इनसाइड टेस्टिस ओनली, वहां पर सेल्स हैं जो रिलीज करेंगी टेस्टोस्टेरोन। इजैकुलेटरी डक्ट पता चल गया, और उसके बाद ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है, फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और फिर पेनाइल यूरिथ्रा। ठीक, एंड ये जो टिश्यूज बताए थे अभी, इसमें से जो टिश्यू है जिसका नाम है कॉर्पोरा और कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये टिश्यू आगे आकर थोड़ा एनलार्ज हुआ होता है, विच इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड ओपनिंग। दिस इज एक्सटर्नल यूरिथ्रल अपर्चर और ओपनिंग। और यहाँ पर दिस पार्ट ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय फोरस्किन। ओके, तो ये हो गया अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका सिर्फ अभी हमने डायग्राम स्टडी किया, अभी हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे एक एक करके, एंड देन you will understand it, okay, properly. So thanks for watching. Please do like the video and share with your friends. Bye bye.